आप सुन रहे थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आदित्य अवस्थी की ये बातचीत एंड आई एम श्योर दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. Now let's talk about Indian cinema once again. You see, it's an amalgamation of flavors of India. It's indeed a jugalbandi of many arts put together. But the question still remains, do jugalbandis really work? And this is also our topic of the next discussion. A first of its kind jugalbandi between North Indian Hindustani classical music and South Indian Carnatic music. And to answer these questions, do jugalbandi really work? May I invite Bhavnesh Khomkali, grandson of Pandit Kumar Gandharv, son of Mukul Shivputra. Bhavnesh's musical journey began as a young child. Now he is currently engaged in enriching the archives of Pandit Kumar Gandharv's music using the latest in digital technology. He has been awarded with scholarship by Cultural Department of Government of India in the year 2009. He was also awarded by the Shanmukhanand Shiromani Award and Mallikarjun Mansoor Yuva Puraskar by Government of Karnataka in 2010 and the Sangeet Natak Academy's prestigious Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar in 2012. He's a regular performer for All India Radio as well. Along with him, we have Sudha Raghuraman, born and groomed in a family steeped in the tradition of Carnatic music. Sudha has trained in vocal music initially by her father, late Sri O.S. Sridhar, and a year after by her illustrious grandfather, Sangeeta Bhushanam Sri O.V. Subramaniam, from whom she learnt the nuances of the art form in a very detailed manner. She has more than 250 recordings to her credit. Her upbringing in North India has helped her to develop a keen passion for Hindustani music, which adds yet another dimension to her creative sensibility. She has recently been conferred with the prestigious Ustad Bismillah Khan Puraskar by the Sangeet Natak Academy. She is currently a visiting faculty at the Ashoka University, where she teaches co-curricular Carnatic music. And this session will be moderated by Ms. Shailaja Khanna, who is a well-known musician. However, she is better known for her work as a writer of the music world. I'm sure you will enjoy every moment of this conversation. So go ahead and have a good time. नमस्कार, वेलकम टू अर्थ अ कल्चर फेस्ट. आज हमारे समक्ष में देश के दो बहुत उम्दा कलाकार हैं. फ्रॉम द कर्नाटक स्ट्रीम वी हैव श्रीमती सुधा रघुराम जी. शी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द इलस्ट्रियस विद्वान O.V. Subramaniam ji, daughter of O.S. Sridhar ji. She is a descendant in the line of Tyagaraja Swami. और नॉर्थ से हैं हमारे बीच में श्री भुवनेश कोमकली जी. He is the grandson of the iconic पंडित कुमार गंधर्व जी, son of पंडित मुकुल शिवपुत्र जी. उनकी संगत में मृदंगम पे श्री N. पद्मनाभ जी और तबले पे श्री शंभू भट्टाचार्य जी. So I think before we start the session, we should have some music. So I'll request Sudha ji, please, something. तुषार हार धवला या कुन्तेन्दु तुषार शुभ्र वस्त्र अमृता या शुभ्र
वस्त्र वृगता या वीणावर दंडमण्डितकरा या वीणा वर दंड या श्वेत पद्मा आसना या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सदा वन्दिता देवै सदा वन्दिता सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती निशेष जाड्या निशेष जाड्या निशेष जाड्या वाह, दैट वाज वंडरफुल। और जैसी हमारी प्रथा है कि संगीत के दोनों शैलाओं में आई थिंक प्रथा है टू इन्वोक द डिवाइन वन। आवर म्यूजिक इज टू कनेक्ट द आत्मा विद द परमात्मा। आई थिंक वी ऑल बिलीव दैट। सो सुधा जी, आई थिंक ये राग यमुना कल्याणी था कर्नाटक शैली में, एंड कल्याण हमारे आपके उत्तर में।
तो रागों के बारे में थोड़ा बताएं कि हाउ डज इट साउंड लिटिल डिफरेंट, राग अलग कैसे हुए, क्या थोड़ा बताएं जी। Carnatic music, we have different treatments for every note. That makes it very very unique. जैसे गमकों का प्रयोग हम करते हैं. Supposing we take Ragam Kalyani, which is Yaman in the Hindustani tradition. Sari Gama Pada. If you notice the dhaivar, da is the note. Da ni सा के साथ adjoin करके निषाद हम देते. Ni even the rishabh, re, because it's a major note, we have that through from the gandha. Gari, 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 nida, nida, da. So this is how the treatment of every note we learn, and then with experience we are able to, it's like spice, it's like salt and pepper. We can't use it too much, at the same time we can't not use it also. So we have to have the adequate amount of gamaka for every raga. वाह सुधा जी। भुवनेश जी, आप कुछ इसके बारे में, रागों के बारे में कहिए कि हमारे प्रथा में जो टाइम स्केल का बहुत अहमियत है उसके बारे में कुछ बताएं, और क्या आज की डेट में जब कॉन्सर्ट्स शाम वगैरह को भी होते हैं, डू यू थिंक इसमें कुछ वजूद है अभी भी? उत्तर भारतीय संगीत पूरा समय को ध्यान में रखते हुए उसकी संरचना है। सुबह के रागों का एक समय है, दोपहर के रागों का भी एक समय है, और पहले जब, अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि पूरी रात कॉन्सर्ट चलता था, पूरी रात महफिल होती थी। कॉन्सर्ट तो आज का शब्द है, देखा जाए तो एक्चुअली शब्द महफिल है। तो पूरी रात जब महफिल और सभा होती थी तो पूरी रात के हर पहर के अपने राग हैं जो पहले गाए जाते थे। आज भी उस चीज़ के ऊपर हम कायम हैं, और मुझे लगता है कि कायम रहना चाहिए, क्योंकि उस समय से उस राग का जो एक बंधन पहले के समय के लोगों ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने, उसके पीछे निश्चित कुछ न कुछ कारण है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उन रागों को उस समय, निर्धारित समय पे यदि हम गाते बजाते हैं तो निश्चित ही उनका असर कुछ अलग होता है। ये बात सही है कि आजकल कुछ राग इस बंधन के कारण, और ख़ासकर इस बंधन के कारण कि शाम को ही बस अब कार्यक्रम या सभाएं होती हैं, तो इस बंधन के कारण कुछ कार्यक्रम में हम बार बार वही रागों को सुनते हैं, और कुछ ऐसे रागों को सुन नहीं पाते जो उस समय पे नहीं होते हैं। पर उसके लिए मुझे ये कहना ज़्यादा ठीक लगता है कि यदि वास्तव में हम उन रागों को सुनना चाहते हैं तो हमें उस समय पर थोड़ा सभाओं को करना चाहिए, ताकि हम उसको बिल्कुल सुन सही है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त टाइम भी बिल्कुल सही है, तो कुछ आफ्टरनून की राग भीम पलास या कुछ अगर आप दोनों, और फिर हम देख भी पाएंगे द डिफरेंसेस यू मेंशन सुधा जी। इट वुड बी नाइस इफ यू कुड डेमोन्स्ट्रेट प्लीज।
रिदनना रिदना तना रिदना रिदना दनना दनना ननना एना तना ना रिदना तरादना रदनना दनना दनना रिदना अनो रिदना रिदना ना ना याना ना आ आ आ आ
भज रे मानस श्री रघुवीर 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 भूति मुहूर्ति प्रदम वसुदेवं हरिं भज रे मानस श्री रघुवीर भूति मुहूर्ति प्रदम वसुदेवं हरिं भज रे मानस जा जा रे अपन मंदरमा जा जा रे अपन मंदरमा जा जा रे अपन मंदरमा आ मंदरमा जा जा रे अपने मंदरमा जा जा रे अपने मंदरमा जा जा रे अपने मंदरमा सुन पावेगी सासन नदी जा जा रे अपने मंदरमा जा जा रे अपने मंदरमा आ जा जा रे अपने मंदरमा 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 सुन पावेगी सासन नद जा जा रे अपने मंदरमा जा जा रे अपने जा जा रे अपने जा जा रे अपने मंदर वृजिन विदूरम् वृजिन विदूरम् विश्वाधारौ वृजिन विदूरम् विश्वाधारौ
विदूरं ग्रीष्मदारौ सूचन मन्दरं सुन्दराकार सूजन मन्दरं सुन्दराकारौ सूजन मन्दरौ सुन्दराकारौ भजरे मानस श्रीरघुवीरौ भूति मुहूर्ति वासुदेवं वासुदेवं हरिं वासुदेवं अपन मंदर माजा जा रे, अपन मंदर आ मंदर माजा जा रे, अपन मंदर सुन पावेगी सासन नद जा रे, अपन मंदर सुनहु सदा रंग आ सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है, तुमको चाहत है, सुनहु सदा रंग सदा रंग सदा रंग सुनहु सदा रंग तुमको चाहत है, सदा रंग तुमको चाहत है, अब तुम गाए छगन दिया जा जा रे, अपने मंदिर मां जा जा रे, अपने मंदिर अपने मंदिर मां जा जा रे, अपने मंदिर आ आ आ जा रे, अपने जा रे, अपने जा रे, अपने मंदिर रवि शशि कुज बुध हर शुक्र शनीश्वर राहु केतु नेतारं रवि शशि कुज बुध गुरु शुक्र शनीश्वर राहु केतु नेतारं राजकुमारं रामं पवनीजातं पवनीजामनोहरं भजते हे मानस श्रीरघुवीरौ
क्या बात है, that was so beautiful. But I noticed again same note, Sudha ji. तो इसके बारे में थोड़ा बताएं. The rag is common. Are there many common rags in both systems? Because I know कि you have trained in Karnataka, but आपको हिंदुस्तानी का भी knowledge है. I do know that. So थोड़ा just take us through that, Humble please. attempt. We call it Abheri, which was naturally later named as Bhimplasi. We do have some scales which are extremely similar, like Karnataka Devagandharam or Dhanashri. All these are very, very similar ragas. But I believe so that so many years back in Abheri, we used to have the Suddha Dhaivatam. Saga Bapane Sadnida Bamagarisa is Abheri like Bhimplasi. But I believe many, many years back they used to use Pada. But later on, it was adapted and it was suitable, so they removed that and it was sung like exactly like the Bhimplasi notes. But you will notice the Gandhara, Saga, Gaba, 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 Gaba. When you oscillate that Gamaga, you get the Bhimplasi, the Abherika. Saga, Mapani, Pasani, Sani, 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 Sani. It's basically physics, nothing but physics. We oscillate two notes to get the other note. Pani. Panisa, nisa garisa, nida pa, magarisa, nida pa, panida pa. We take from the pa to go to the sa and then come to ni. So this is how we approach a note. So that's what it is in Carnatic. That is the Kubi of Carnatic. So I think music. there are lots of common rags between Yes, both we do have, systems. like, Charukesi, we take Bhoop and Mohanam, we have Yaman and Kalyani, Megh Malhar and Madhyamavati, and Kiravani has been adapted by Hindustani musicians. Likewise, we have taken, we also sing Rageshwari, Shuddha Sarang, Pahadi. Of course, we are not adept with these ragas, but this is again a very beautiful raga and such a different treatment in every genre. So that's what. So the origin they say was common कि एक जड़ था और कोई 500-600 साल पहले ये bifurcations हुए, थोड़े treatment अलग हुआ. Now to sort of understand the whole process a little more, perhaps you could do a solo. Yes, आप अलग करें and then we hear Bhuvnesh ji. of course. Would you like to do that? Because it has been apparent in this जुगलबंदी. कुछ फर्क तो नजर आ ही रहा था कानों का, but थोड़ा और हम सुनना चाहेंगे. So So I'm. and before maybe we could talk about the difficulties of this जुगलबंदी concept. जो आप लोग बैठे हैं, is it technically tough? I mean, is it seamless? I know you have a good chemistry with Bhuvnesh ji. आप लोग बता रहे थे. Is it Bhuvnesh ji? You think chemistry is more important कि मुश्किल है किसी और शैली के साथ? इम्पोर्टेंट है जी. अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एक दूसरे को आप कितना अच्छा समझते हैं वो ज़रूरी है. मुझे लगता है कि जैसे ऑफ द स्टेज हम लोग आपस में बात करते हैं तो अलग अलग भाषाओं में हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ मंच पर बैठकर हम लोग अपने भीमपलास की बात कर रहे थे. वाह, क्या बात है. हमने भीमपलास में जो बातें करी, उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात कही, मैंने अपने ढंग से मेरी बात कही, लेकिन
हम दोनों भीमपलास की बातें कर रहे थे, हम भीमपलास की एक कहानी कह रहे थे, जी हम उस राग की व्याख्या कर रहे थे। उनका अपना कहने का एक ढंग है, मेरा अपना एक कहने का ढंग है। इसको आप उत्तर भारतीय के नाम से जानते हैं, इसको आप कर्नाटक के नाम से जानते हैं, बस इतना सा फ़र्क है। उनकी कुछ कृति के माध्यम से वो कह रहे थे, मैं अपनी बंदिश के माध्यम से कह रहा था। हम दोनों उन्हीं सुरों की बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये जो एक बात है, ये पर्टिकुलरली हम दोनों की, वो इसलिए हम ठीक से कर पाते क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तो ये भी बात है। दूसरा, जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ और इनकी आप बात कर रहे थे, हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हम लोगों का है। एक फीमेल वोकलिस्ट होने के कारण उनका अपना एक सुर है, और जैसे मैं मेल वोकलिस्ट हूँ तो मेरा अपना एक सुर है। हम दोनों ने एक बीच का कोई एक सेतु पकड़ने का सोचा है सोचा। और हम उस पे हैं। एक और संयोग की बात यह है कि इनका जो मूल स्वर है और मेरा जो मूल स्वर है वो इस सेतु के बहुत पास में है। आप थोड़े नीचे आए और वो थोड़े ऊपर गए। जी, ये ऊपर आए, ये ऊपर आए। नीचे। अच्छा, आप नीचे। एक सुर। एक सौ। तो इसलिए हमारे जो मूल स्वर हैं वो भी बहुत करीब हैं, वो बहुत दूर दूर नहीं है। इसलिए हमारा जो सेतु बना है वो बहुत तुरंत बन गया। तो इस तरह से कुछ चीज़ों के कॉम्प्रोमाइज़ेस तो होते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमारे साथी कलाकार भी करते हैं। और थोड़ा सा मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहूँगा, वो एक क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। एक थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा हट के बाजू जाकर थोड़ा कुछ काम किया है। और बहुत कुछ लर्न करने को भी तो मिलता है। नहीं, वो मैं पूछ रही थी कि जुगलबंदी का व्हाट डू यू फील कि इससे होता क्या है? बिकॉज यू आर कंफर्टेबल इन योर जॉनर। जब आप किसी और के साथ बैठते हैं तो यू आर स्टॉपिंग योर ओन क्रिएटिव प्रोसेस। तो इससे as though it is curbing my creativity, but at the same time what I'm gaining out of the whole experience is something very very beautiful, because हम सुनते हैं, हम एक वो phrase लेते हैं, la la la, for instance, if he has taken, then it gives me the lead to go further. So likewise I'm sure जो आप कह रहे थे कि हम एक दूसरे को रोकते हैं या हम आपस में एक को रोक रहे हैं, एक्चुअली वो रोकना नहीं है, एक दूसरे को हम नया रास्ता खोज के देते हैं। that's exactly it. एक नया रास्ता और एक नया चैलेंज भी देते हैं कि हाँ यहाँ से सोच के देखा जाए, वहाँ से सोच के देखा जाए। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमने भीमपलास में थोड़ी देर बात की, हमने भीमपलास की व्याख्या करने की कोशिश की, और ये हर बार व्याख्या नए ढंग से होगी। यही इस संगीत का आनंद है। हाँ, थोड़ी उपज की बात करें। हाँ। कि इम्प्रोवाइजेशंस जो आप बता रहे थे, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट? पहले आप भुवनेश जी, कि हमारी नॉर्थ की परंपरा में इज इट अनलिमिटेड क्रिएटिव लाइसेंस? आपको क्या लगता है? बंधन राग ताल की तो है ही, हाँ, राग ताल की बंधन तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सुधा जी वाज एक्सप्लेनिंग दैट बिफोर शी डज, आई वांटेड हिम टू। जी, हमारे बाबा पंडित कुमार गंधर्व जी एक बात कहते थे कि हमारा संगीत बंधन युक्त स्वतंत्रता का संगीत है। उनका वाक्य था कि इस संगीत में जितने बंधन हैं उतनी ही स्वतंत्रता है। और जहाँ तक आप उसमें उपज की बात कर रहे हैं और ये सब, भीमपलास कितने सालों से गाते आ रहे हैं, जा रे अपने मंदिरमा, ये कितने सालों से हम गाते आ रहे हैं। सालों सालों से गाने के बाद भी इसका रस जो है उसकी व्याख्या हो रही है। भीमपलास की व्याख्या हो रही है, यमन की व्याख्या हो रही है, भैरवी की व्याख्या हो रही है, कल्याण की व्याख्या हो रही है। और हर बार आप कितनों का कल्याण सुन चुके हैं, लेकिन हर बार वो कल्याण नया लगता है, हर बार वो कल्याण वैसा ही ताज़ा लगता है, हर बार वो तोड़ी उतना ही उसके अंदर उमंग लगती है। तो ये जो एक बात है, ये तो अनलिमिटेड है, उसकी व्याख्या तो अनंत तक चलती रहेगी, ये मेरा मानना है। सुधा जी, आप बता रहे थे मुझे पहले, इफ यू कुड टॉक अस थ्रू दैट, कि The कर्नाटक improvisation. शैली में, हाँ, इम्प्रोवाइजेशन, उपज, वी कॉल इट उपज, उसके बारे में थोड़ा बताएं। So we sing the alapane. We call it ala. You call it ala. We call it alapane. That is, of course, it's an improvisational part. But I feel it's a journey to sing an alap. एक phrases लिया. Naturally, the legends have sung so many, as he mentioned, Bhuvnesh ji mentioned. They have sung it so beautifully कि हमें reference point मिल जाती है. एक, for instance, if I have to sing a Shankarabharana phrase,
already it has been sung by several zillion musicians. बट वो एक रेफरेंस पॉइंट को रखकर अपनी क्रिएटिविटी एंड अपनी इंडिविजुअलिटी को हम लाने की कोशिश करते हैं. दिस इज वन पार्ट. वी हैव समथिंग कॉल्ड नेरेवल. नेरेवल इज टेकिंग वन लाइन विच हैज़ अ प्रॉपर मीनिंग. Of course, we can't take any line. It has to have a full meaning, complete meaning, and we improvise that within the given tala cycle, and the spacing of every word must fall on that line only. It is very difficult. It's a very big challenge. हमारे गुरु कहते थे कि नेरेवल जब तक पक्का नहीं होता तब तक आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते. It's a very like भजरे तक दिन भजरे. It is after 4 matra. भजरे हे मानस. Suppose if it is like this, then tak din भजरे. Every time I took the improvisation, re has to fall here only. On the same So place. that is the challenge we have. So one is the swara parastara, kalpana swara, which we call, that we sing after the nereval. And again, this is an improvisational part. अपनी क्रिएटिविटी के साथ there are lots of गरी सा नि द प प सा नि द प प गरी सा गरी सा नि द प गरी सा. लास्ट में एक तिहाई जैसे हम भी लेते हैं 3 rounds. That is set, but every time it can change, as he mentioned also. हर time it sounds differently. Every time the maths is different. So many permutations and combinations can be created out of this. लग रहा है कि कुछ सुनना जाए. प्लीज आप प्लीज गाइए. एंड भुवनेश जी, जो आप कह रहे थे उपज की बात, अगर कुछ द्रुत में आप लें उसके बाद में, दैट विल बी रियली नाइस. ब्रीफली, जस्ट सो दैट आई थिंक वी एंजॉय, बिकॉज व्हेन वी हैव सच मास्टर म्यूजिशियंस विद अस, वी शुड हियर यू. थैंक यू सो मच. One in Bhoop. Kapali da pa da ga pa da sa ri sa da pa ga ri sa ri ka pali sa ri ga pa ri ga pa da sa da pa ga ri sa ri ka pali da 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 pa da sa da pa ga ri ga pa da sa ri sa da sa ri sa da pa ga ri sa ri pa ga ri ga pa pa da da sa da sa da da di di da sa ri ga ri sa da sa ri sa da pa da sa ga ri sa da pa ga ri sa da pa ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa da pa ga sa da pa ga sa da pa ga ri sa da pa ga ri ga ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa da pa ga sa da pa ga ri da pa ga ri ga ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa ri. This is that maths, I mean the core way that we sing at the end of the Kalpana Swara. भुवनेश जी, आप सोहिनी का जिक्र कर रही थी. वुड यू लाइक टू सिंग दैट? I thought of singing a padam by Muthu Tandavar set to Ragam Khamas, which evokes Shringara Rasa. This is set to Talam Rupakam. தெருவில் வாரானோ தெருவில் வாரானோ என்னை சற்று திரும்பி பாரானோ 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 திரும்பி பாரானோ திரும்பி பாரானோ உருவிலியோடு திரிபுரத்தையும்
செய்த நாடன ராஜன் தெருவில் வாரானோ என்னை சற்று திரும்பி பாரானோ தெருவில் வாரானோ வாசல் முள் நில்லமோ வாசல் முள் நில்லனோ எனக்கொரு வாசகம் சொல்லனோ வாசல் முள் நில்லனோ எனக்கொரு வாசகம் சொல்லனோ நேசமாய் உள்ளேனோ கழல் வைத்த ராஜனை வெல்லேனோ நேசமாய் உள்ளேனோ கழல் வைத்த ராஜனை வெல்லேனோ தேசிகலம் பல வான நடாவு புரி தேவாதி தேவல் சிதம்பரநாதன் தேசிகம் பல வான நடாபுரி தேவாதி தேவல் சிதம்பரநாதன் தேருவில் வாரானோ என்னை சற்று திரும்பி பாரானோ தெருவில் வாரானோ என்னை சற்று திரும்பி பாரானோ தெருவில் வாரானோ தெருவில் வாரானோ தெருவில் வாரானோ என்னை சற்று திரும்பி பாரானோ திரும்பி थोड़े ही दिनों में हम एक रंगारंग मौसम की ओर अग्रसर हैं और वो मौसम है, वो त्योहार है होली का। और इस समय में एक ऐसी बंदिश आपको सुनाना चाहता हूँ जो परम आदरणीय पंडित कुमार गंधर्व जी की रचना है और सभी को बहुत प्रिय और प्रसिद्ध भी है। राग सोहनी। Ranganadaro Shamji, Ranganadaro Shamji, Shamji Ranganadaro Shamji, Shamji Ranganadaro Shamji, Nadaro Ranganadaro Daro Daro Ranganadaro Shamji, Gori Par
ये गारी रंग नाडारो शाम कैसे हो खिलाड़ी कैसे हो कैसे हो कैसे हो खिलाड़ी मानत नहीं कैसे हो खिलाड़ी मानत नहीं कैसे हो खिलाड़ी मानत नहीं बड़ा जोनी न करो जाओ मैं तो हारी रंग न डरो शाम रंग न डरो शाम रंग न डारो श्याम जी रंग न डारो न डारो न डारो रंग न डारो श्याम जी रंग न डारो श्याम जी रंग न डारो श्याम गोरी पे रंग न डारो श्याम रंग न डारो श्याम रंग न डारो श्याम जी Wow, what a treat that was. On behalf of Earth, may I thank you all very much for being here, delighting us. बहुत ही आनंद आया. Thank you so much. Namaskar.